Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Listeners who will be calling us from outside Delhi will need to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और 2342 और तीसरा नंबर यही था 7106 और 2342-1050 पर फोन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Domestic share markets end at a new all-time high. Sensex surges 486 points to breach the 65,200 mark. Nifty crosses the 19,300 level. Rupee appreciates 9 paisa to close at 81 rupees and 95 paisa against the US dollar. And oil prices jump as Saudi Arabia and Russia announced supply cuts in August. घरेलू शेयर बाजार आज सर्वकालिक ऊंचाई पर बंद हुए। 486 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 65,200 के स्तर को पार कर गया, जबकि निफ्टी 19,300 के उच्चतम स्तर को पार कर गया। 9 पैसे की मजबूती के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 81 रुपये 95 पैसे और सऊदी अरब और रूस के अगस्त में सप्लाई में कमी की घोषणा के बाद तेल की कीमतें बढ़ी। और सबसे बड़ी खबर आज की एक अच्छी खबर, सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पहली बार 65,200 के स्तर को पार कर गया है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19,300 के उच्चतम स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स 486 अंक या 0.75% बढ़कर 65,205 पर बंद हुआ। निफ्टी 130 अंक या 0.68% बढ़कर 19,319 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.6% की वृद्धि हुई। Key domestic indices today closed at a new all-time high amid positive global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange breached the 65,200 mark for the first time ever, while the Nifty at the National Stock Exchange crossed the lifetime high of 19,300 level. The Sensex surged 486 points or 0.75% to end at 65,205. The Nifty jumped 130 points or 0.68% to finish at 19,319. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.3%, while the small cap grew 0.6%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 of firms appreciated while 15 depreciated. Top gainers include Reliance, ITC and Bajaj Finance, each inching up 2.5%. On the other hand, Power Grid declined 1.9%, while Sun Pharma fell 1.8% and Maruti slipped 1.1%.
In sectoral indices at the BSE, 11 sectors locked gains while 9 witnessed losses. The oil and gas sector surged 2.8%, followed by energy, which jumped 2.1%, while metals scaled up 1.1%. On the other side, healthcare slid 0.7%, while capital goods plunged 0.5% and automobile plunged 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 1,972 companies advanced, while 1,721 declined. A total of 147 shares remained unchanged. And we have already been joined by our first listener of the day, Jitendra from Jaipur. Mr. Jitendra, welcome to the program. Please ask your question. हेलो जी, सवाल पूछे। हाँ, मेरा एक सवाल है कि जैसे गवर्नमेंट बैंक का LIC लाइफ इंश्योरेंस हमको लेना है, तो कौन सा कैसे बेटर रहेगा, ऑनलाइन लें या ब्रांच में जाकर ले लें? ब्रांच मेरे ऑफिस के पास में ही है। आप गवर्नमेंट बैंक से फिर से अपना सवाल प्लीज दोहराएं अपना सवाल आप। जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेना है बैंक का, जैसे SBI बैंक लाइफ इंश्योरेंस होता है, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस होता है, जी बता रहा हूँ, तो उनका हमको LIC लेना है, तो ब्रांच से लेना चाहिए या ऑनलाइन ले लें? देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो LIC जो है वो सिनोनिमस बन चुका है, पर्यायवाची बन चुका है जब कभी जीवन बीमा की बात आती है। देखिए जितेंद्र जी, आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप LIC के किसी एजेंट से बातचीत करके आप ले सकते हैं, या आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के उनकी जो इंश्योरेंस हैं, जैसे आपने स्टेट बैंक की बात की, या अलग अलग बैंकों के अपने अपने इंश्योरेंस डिवीजन है, उनकी सब्सिडियरी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो आप उनमें से कर सकते हैं। देखिए अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो LIC की पॉलिसीज की लोकप्रियता अपनी है और बैंकों की पॉलिसीज की अपनी कुछ खासियत है, तो आप दोनों के बीच में तुलना कर लें। और इसके लिए बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं जहां पर जाकर के आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि प्रीमियम आपको कहां ज्यादा लगेगा, सुविधाएं कहां मिलेंगी। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिनका बेहतर हो वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आपके लिए बेहतर होगा। और शिशिर जी ये भी जानना चाहते हैं कि फिजिकल मोड में जाकर पॉलिसी खरीदें या ऑनलाइन ये पॉलिसी ले सकते हैं? ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं तो बैंक या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके साथ टच में होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेहतर है कि किसी एजेंट के जरिए जाएं। एक और विकल्प है ऑनलाइन में कि अगर आप एग्रीगेटर के जो हैं, जो अलग अलग एग्रीगेटर्स हैं, वहां पे कंपैरेटिव यानी कि तुलना आप कर सकते हैं कि किसकी पॉलिसी अच्छी है, किसका प्रीमियम कम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका है। इन 2-3 चीजों पर ध्यान में रख करके आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। ऑफलाइन या ऑनलाइन में आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन जाएंगे तो आपको ज्यादा चीजें शायद हो सकता है कि ना समझ में आए, ऑफलाइन जाएंगे तो आप ज्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं। इसी बीच गुरुग्राम से हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास जी अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद विभूति। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे 2 सवाल हैं। पहला, कंसिडरिंग द करंट मार्केट कंडीशंस एंड ट्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सोने और चांदी में निवेश करने का समय अनुकूल है? और दूसरा सवाल था कि जैसे कि आज से जो ज्योग्राफिकल बेस ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग था वो निफ्टी इंडेक्स इज चेंज्ड एज गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा? थैंक यू। पहला प्रश्न जो है आपका कि शेयर बाजार की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए सोने में निवेश करना या चांदी में निवेश करना उचित है या नहीं है। देखिए अभी के समय में जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो आमतौर पर सोना जो है वो पीछे रह जाता है, और ये दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन, उल्टा जो हम लोग कहते हैं संबंध हमें देखने को मिलता है। अभी के समय में चूंकि शेयर बाजार काफी ऊंचाई पर है तो मुझे लगता है कि ये समय उचित नहीं होगा कि आप शेयर बाजार में एंट्री करें। हाँ, आपके पास कुछ शेयर हैं और आप उसको एवरेज करना चाहें, अगर उसकी कीमत किसी की घटती है तो आप एवरेज करें, वो ज्यादा बेहतर है। मेरी सलाह तो ये भी होगी कि अगर मुनाफा कमा सके तो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं है। दूसरा रहा सवाल सोने का निवेश करने का, तो सोने में निवेश करना हो तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उनमें आपको जाना चाहिए। सोने के गहनों में निवेश ना करें, क्योंकि गहनों में निवेश नहीं किया जाता है। गहनों में भावनाएं लगी होती है, भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती है, उनको अलग रहने दीजिए। निवेश करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और उसमें जा सकते हैं। अभी के समय में अगर सोने की जो कीमत है
उस कीमत को देखते हुए सोने में आप अपने टोटल जो रिसोर्सेज हैं उसका 10% तक आप कर सकते हैं। शेयर बाजार में आप अगर प्रॉफिट बुक करें तो बहुत अच्छी बात है, और म्यूचुअल फंड के रास्ते अगर आप शेयर बाजार में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। दूसरा जो आपका गिफ्ट निफ्टी का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन की बात कही जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभी तक ये हो रहा था कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग जो डॉलर बेस्ड डेरिवेटिव था उसकी ट्रेडिंग होती थी, और जो भी रिटेलर, जो भी ट्रेडर्स हैं और जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो 9:15 के पहले जो हमारे यहाँ मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है और 9 से 9:15 के बीच जो प्री ओपनिंग होती है, उसके पहले वो SGX निफ्टी की चाल देखते थे क्योंकि वो 8 बजे शुरू हो जाता था। अब क्या है कि आपके पास ऑलमोस्ट समय बराबर का है, और आपके लिए अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो गिफ्ट निफ्टी का यहां पे आना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि डॉलर बेस्ड डेरिवेटिव के लिए अब आपको सिंगापुर के समय के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं होगी। एंड बिफोर वी टेक कॉल फ्रॉम आवर नेक्स्ट लिसनर, Shishir, again, now this is a second straight session when the indices have closed at a new high, and in fact, we've been seeing markets, performing very well, closing in the green or the whole of last week. What do you attribute it to? And moreover, more than that, where do you see from here the markets going? There are two factors. First of all over the world, the feeling is that the interest rate has peaked. So now when the interest rate has peaked, so that means the opportunity is available in the stock market. At the same time, among the emerging economy, if you take the return on equity, that is much higher in India because the valuation is still very low. So that is also giving some kind of comfort to our institutional investors, especially the foreign institutional investors, to put more and more money. And you will be surprised that they have booked a good amount of profit. Still, they are a good, what you can say, net investor. So, considering the geopolitical situation, Indian economy and Indian markets are appearing to be very attractive, which are attracting people from all over the world. So, that is one of the reasons. And now we have a listener from Noida, Mr. Prem Pujari. Mr. Pujari, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेम जी, अपना प्रश्न पूछिए। अभी जीरो बैलेंस का अकाउंट जैसे खोले गए थे, काफी संख्या में खोले गए थे, उन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड तो बनवाया नहीं था, और सरकार की तरफ से आधार से पैन लिंक कराना जरूरी था, और उनके लिए तो कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, अगर उनको फिर जरूरत पड़ जाती है पैन को अपना बनवाने की, तो वो फिर लिंक कराने जाएंगे, क्या उस समय इनका क्या पेनल्टी लगते ही इनका लिंक होगा? इसके बारे में क्लियरेंस करेंगे। ओके, पहला जो आपका है जिसमें आप कह रहे हैं कि जीरो बैलेंस का, जो आमतौर पर जो जनधन खाते की बात थी जहां पर जीरो बैलेंस की सुविधा दी गई थी, उन खातों को खुलवाने के समय में आपको बहुत तरह की रियायतें दी गई थी। लेकिन अभी के समय में चूंकि 30 जून की समय सीमा थी जब आपको पैन और आधार को लिंक कराना था, और वहां पर जिनके पास उस समय तक पैन था और जिनके पास आधार था वो लिंक कराना जरूरी था। ज्यादातर बैंकों ने बैंक खाता खोलने के समय पैन को अनिवार्य कर दिया है काफी समय पहले से ही, लेकिन अभी के समय में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके जनधन खाते में जिनके पास पैन ना हो। यहां पर हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के इंस्ट्रक्शन का इंतजार है कि जो नया पैन बनेगा, क्या उनके लिंक कराने के समय में जो 1,000 रुपए की पेनाल्टी 30 जून तक लग रही थी, क्या वो उस पर लगेगी या बिना किसी शुल्क के देगी, वो अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। उसका इंतजार करिए, मुझे लगता है 1 या 2 दिनों के भीतर उसका स्पष्टीकरण आ जाएगा। जहां तक मेरी समझ है कि अगर पैन बना ही नहीं है किसी का, तो वहां पर उसको लिंक कराने के ऊपर उसकी कोई लापरवाही या उसकी कमी जो है वो नहीं देखी जाएगी और उसको रियायत मिलेगी। इसी बीच कोलकाता से हमारे श्रोता हैं अतानु साहा जी। नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। थैंक्स टू आवर पाथफाइंडर मार्केट मंत्र। Sir, I Atanu from Kolkata, sir. My question is, what is LRS, Liberalized Remittance Scheme, and if 20% deduct from its at source for the purchasing foreign securities, and how we retrieve our that 20% from tax authorities? Thank you.
Okay. Mr. Saha, this liberalized remittance scheme of $250,000, in a year you can remit without any approval from Reserve Bank of India up to $250,000. Beyond that, you need to take approval from RBI. And please remember that you can remit only for the what we understand is the recognized activities, not the illegal activities and other things. And that also includes, that means the recognized activities also include purchase of equity, purchase of real estate abroad. Now coming to the second part, that the 20% TCS, which is a tax collected at source, which is supposed to come from July 1, now it has been postponed to October 1. So as of now, there are 4 categories. One is, of course, the education. The second one is the medical. The third one is the other purpose. And the fourth one is the overseas tour package. So for the education thing, you have, if you have taken loan from the bank, and if you are providing money for the education abroad, the TCS rate will be 0.5% up to 7 lakh rupees. I beg your pardon, beyond 7 lakh rupees. In case of medical also, it will be 5%. But if it is a self-financing for the education, the rate of TCS will be 5% and the threshold is 7 lakh rupees. For other purposes, the rate will be 5%, and for the overseas tour package, the rate will be 5% without any threshold. So the 20% TCS will be applicable only from the October 1. Now coming to the next part, that with how we can get back that TCS, you will have to file the return after the financial year, and then you can claim the refund because the TCS is something where you can claim the refund. And our next caller is from Bangalore, Mr. N.R. Prasad. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Sinha, there are 2 questions. My first question is, FPI investment hits 10-month high of 47,100 crore in the month of June. I just want to know, any idea what is the percentage in this in the IT sector? That means whether IT sector is Indian IT sector is still in demand. My second question is, Bank Nifty also rallied and it gone beyond 45,100. Is it worth investing more on the bank? Thank you. Now coming to your first question, that what percentage we have in IT, as of now it is difficult for me to give the answer to that because it is not readily available. But I mean, if I can guess, it is not very significant because we all know that the IT sectors have not been very, very favorable for the institutional investors, and we all know the reason. Globally, the IT spending has come down, so there is an apprehension that their earning may not be that good. So it will be some amount, but I don't think it will be a significant amount. I will try to find out the percentage next time we will meet virtually. The second part of your question about the Bank Nifty, of course, the financial sector is one area which is again getting prominence. So I feel that it is time to even make a small investment in the financial sector at this level. There is nothing wrong in that. And मुंबई से हमारे श्रोता हैं रत्नाकर जी। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है रत्नाकर जी, अपना प्रश्न पूछें। नहीं सर, हाँ, मेरा सवाल है कि मार्केट ऑलरेडी 65,000 तक गया है, तो और वो कितने आगे जा सकता है? क्या अभी जो प्रॉफिटेबल शेयर है वो बेच के हमने प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और आने वाले अभी 3-4 दिन में कैसा मार्केट रहेगा? रत्नाकर जी, पहली बात कि ये चूंकि एक मैं ज्योतिषी नहीं हूं, तो इसलिए ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आगे कहां तक जाएगा और 3-4 दिनों में स्थिति कितनी अच्छी रह सकती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हम कह सकते हैं, जो हमारा सामान्य अभी तक का जो दृष्टिकोण रहा है और जो बाजार की परिस्थितियां, उसको देख करके कह सकते हैं कि अभी बाजार में तेजी बनी रहेगी। अब ये तेजी जो है वो किस हद तक जाएगी, थोड़ा सा उस पर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को सामने रखना शायद उचित नहीं है। हालांकि कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो 1 लाख की अब बात करने लगी हैं सेंसेक्स की, कि इस साल के अंत तक आते आते ये 1 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि ज्योतिषी का ये काम नहीं है और इस तरह के अटकलबाजियों से बचना चाहिए। रहा सवाल मुनाफा कमाने का, मुझे लगता है कि अगर आपका कैपिटल एप्रिशिएट किया है, अगर आपने जो मूल लगाई थी उसमें बढ़ोतरी आपको दिख रही है,
तो थोड़े थोड़े मुनाफा कमाने में कभी हिचकिए नहीं, क्योंकि याद रखिए कि आपने 100 से 150 आने की बात कही और आपने मुनाफा नहीं कमाया, आपने ये सोच करके काम अपने टाल दिया कि जब 180 पे आएगा तब मुनाफा कमाएंगे। हो सकता है कि वो 180 पे ना जाए और ये भी मुमकिन है कि 150 के नीचे चला जाए। तो संस्कृत की कहावत है ना, संस्कृत का एक श्लोक भी है कि जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ बढ़ता है उसके लिए निश्चित का भी नुकसान होना होता है। मैं शायद थोड़ा दार्शनिक हो गया हूं, लेकिन ये एक हकीकत है बाजार को लेकर के। एंड बिफोर वी टेक द नेक्स्ट कॉल्स, लेट्स हियर हाउ द रुपी बिहेव टुडे फ्रॉम विभूति। हाँ, रुपया का हाल जान लेते हैं। आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत होकर 81 रुपये और 95 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 103.17 पर कारोबार कर रहा था। Moving on to another story, the Delhi High Court today dismissed a PIL against RBI's decision to withdraw currency notes of 2,000 rupees denomination from circulation. A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramaniam Prasad dismissed the plea filed by an advocate. Earlier in May, the High Court had rejected the PIL, seeking a direction to the government to not allow exchange of 2,000 rupees banknotes without a requisition slip and identity proof. The court said that this decision of the government is purely a policy decision and courts should not sit as an appellate authority over the decision taken by the government. And we have once again been joined by our first listener of the day, that was Mr. Jitendra from Jaipur. Mr. Jitendra, welcome back to the program. Please, अपना सवाल पूछें। हाँ, अच्छा सर, वो सेटलमेंट क्लेम जो रेशियो है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? सेटलमेंट क्लेम रेशियो जो है वो, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं, किसी भी पॉलिसी को खरीदना चाहते हैं, तो उस कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखिए। अमूमन जो कंपनियां हैं वो अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से विज्ञापित करती हैं, प्रचारित करती हैं। अगर आपको फिर भी संदेह हो तो उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के जरूर पूछिए कि आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या रहा है, तो आपको वो उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे भी मिल सकता है, हेल्पलाइन नंबर से मिल सकता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम बीमा क्यों कराते हैं? अगर किसी भी तरह की विपदा हुई, किसी तरह से परेशानी हुई, तो उसका भुगतान हो सके। अगर वो रेशियो अच्छा, अनुपात अच्छा है, तो वो पॉलिसी आपके लिए बेहतर साबित होगी। यहाँ दिल्ली से हमारे श्रोता हैं पंकज। पंकज जी, मार्केट मंच में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। हेलो जी पंकज जी, आपकी आवाज साफ है, आप इस प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मैं क्या बताऊं कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मार्केट मंत्रा तो रिटेलर्स के लिए एक रामबाण वाला काम है। धन्यवाद धन्यवाद। प्रॉब्लम सर यह है कि मैं 50 साल से मार्केट के अंदर हूं। मेरे फादर ने सिखाया, हमारे फिजिकल शेयर लेने के लिए इतनी मेरी हालत खराब हुई है, लगता है कि उसको छोड़ दें, चाहे वो उसकी वैल्यू अराउंड 1 करोड़ 1 CR की है, पर मेरी ऐसी हालत कर दी है कि सबसे बड़ी बात है कि एक ही पोर्टल होना चाहिए। सेबी अपना रूल बनाती है। हेलो जी, सवाल रूल बनाती है। सेबी जो है वो व्हाइट कॉलर एसी ऑफिस में बैठ के डिसीजन लेते हैं, या तो एक जगह सेंट्रल एजेंसी हो जहां पे के सारे केसेस सेटल हो, सक्सेशन कोड देगा। सेबी जो है वो आईपीएफ, उसके बाद आईपीएफ में चला जाएगा, फिर आईपीएफ में जाके फाइट करना पड़ेगा। और आईपीएफ के लेने के लिए यार इतना बड़ा रैकेट घूम रहे हैं लोग, 50 से 60% उसमें से आपका पैसा मारना चाहते हैं रिटेलर। वो एज ए क्रिमिनल, मतलब कि जैसे शमशान घाट के बैठे होते उस तरीके से होने को तैयार है। तो ये सब जो अनक्लेम्ड मनी है या जो मनी नहीं। पंकज जी, आपसे आग्रह है कि आप प्रश्न को संक्षिप्त रखें और साफ करें प्रश्न। कहना चाहता हूँ, जो इस टाइप का मनी है जो फिजिकल शेयर से लोग नहीं कर पाए या उनके फादर नहीं कर पाए, इनहेरिटेंस में है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम क्यों है? सक्सेशन के अंदर हमें 2-2 साल हो गए, वो डेट लग रहा है, तो उसका कोई एक विंडो क्यों नहीं बन जाता? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अभी आपको बताया कि एक अभी बैंकों की तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाने की बात की गई है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का था। और आपको याद होगा कि बजट में एक जो अनक्लेम्ड या इन जो शेयर्स हैं उनको लेकर के भी स्पेशल ड्राइव चलाने की बात की कही गई है।
अब उम्मीद करिए कि जल्दी ही इस बारे में जो है वो एक योजना शुरू होगी, अभियान शुरू होगा, जहां पर आप इस तरह के जो कुछ भी बकाये हैं उनका आप दावा कर सकते हैं। रहा सवाल फिजिकल शेयर का, तो देखिए फिजिकल शेयर को डीमैट में कराना तो अनिवार्य है, तो आपको डीमैट में कराने के लिए बहुत सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आप अपने कंपनी से बात कर सकते हैं, आप सेबी से आप डिस्कस कर सकते हैं, इस पे चर्चा कर सकते हैं, वहां पे आपको इस बारे में मदद मिलेगी। तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि आप अपने शेयर को डीमैट में जरूर बदलवा लें, आपको उसको निपटाने में मदद मिलेगी। दूसरा, जो अनक्लेम्ड जो आप बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा अनक्लेम्ड नहीं, जो आपने शेयर की बात की, जो सक्सेशन वाले जो इश्यूज हैं, वहां पर भी कई तरह की लीगल हेल्पलाइन आपके लिए उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। And before we take our next call, let's hear how the Asian markets performed today from Vibhuti. धन्यवाद अनुभा। अमेरिकी मुद्रास्फीति कम होने के संकेतों के बीच पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयरों में तेजी के बाद एशियाई शेयर बाजार मजबूत रूप के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग 2% बढ़ा, जापान के निक्केई में 1.7% की तेजी आई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% बढ़ गया, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.3% की तेजी आई और सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स सकारात्मक क्षेत्र में सपाट बंद हुआ। जर्मनी के डैक्स में सपाट कारोबार को छोड़कर दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.3% और फ्रांस का कैक 0.2% तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। Oil prices rose today after world's biggest oil exporters, Saudi Arabia and Russia, announced supply cuts for August, despite concerns over a global economic slowdown and possible further interest rate hikes from the U.S. Federal Reserve. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.04 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.30 per barrel when reports last came in. Saudi Arabia said it would extend its voluntary oil output cut of 1 million barrels per day for another month to include August, adding that the cut could be extended beyond that month. Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak said Moscow will reduce its crude export flows by 5 lakh BPD next month in an effort to keep the global market balanced. And now we have Mr. Shankar from Bhopal. Mr. Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question. मैडम, ये LRS के नॉर्म्स अभी टाइट कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर टाइटनिंग द LRS नॉर्म्स? बिकॉज we are going for we thought we will be going towards full convertibility, but we are going for a tightening of the norms. So what is the reason? Is government worried about anything? Please explain this thing. Shankar, sir, so the real problem with LRS is that there is also misuse of this facility. So as of now, you have $250,000 without any approval from the RBI. That comes around something 8.5 crore. If you take 8.5 crore per person per family, I mean 8.5 crore is not a small amount. It's a reasonable amount. Now the question is why it is being tightened. So tightening is done mainly on account of the credit card, because the credit card is not included in the LRS. When you are spending abroad on credit card, that is not included in LRS. Debit card is included but not the credit card. That is one problem. However, this has been put in abeyance because of so many logistic issue, and also the 20% LRS on overseas tour package and also on the other purposes beyond rupees 7 lakh in case of other purposes, and for the overseas tour packages, that has been postponed till October 1. So we will have some more clarity and we will have some more details about this thing. जल्दी से सोना कहा जानते हैं। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने की कीमतें 156 रुपये गिर गई। सोना 58,055 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 121 रुपये बढ़कर 69,056 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in this edition of Market Mantra. Thank you so much for coming to the studio, Mr. Sinha, and answering the queries of our listeners. Thank you.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic share markets end at a new all-time high. Sensex surges 486 points to breach 65,200 mark. Nifty crosses 19,300 level. Rupee appreciates 9 paisa to close at 81 rupees and 95 paisa against the US dollar. And oil prices jump as Saudi Arabia and Russia announce supply cuts in August. And that's it in this edition of Market Mantra. Do join us tomorrow at 6:30 p.m. for your dose of economic, business and financial news. Till then, from the entire team, Namaskar. Namaskar. Market Mantra.